एंड मेरे भाई ने जैसे ही वो पोस्ट देखा, just locked myself in room and cried like the entire day. Guys, and welcome to Shut Up Mansi, where overthinking turns into content. Hit the subscribe button for real talks, real rants, and a lot of drama. Let's get started. I think by the title it's super clear that I'll be talking about my school life journey in this video, and I'll divide my journey into primary section and secondary section. I'm really excited to share these stories with you guys, and I would really appreciate for you guys also to share some memories and turn the comment section a little more engaging. So let me take you through it. Talking about primary section, firstly, from this video onwards, I'll start taking names of my family members, because in the previous video I've made everything very clear about my family, and if you are a new subscriber or a new viewer, you can check the previous video to understand things better. Chatty and I went to the same school. We went to Gokuldham High School Junior College, which is in Goregaon East, and we stay in West, so we had school bus to pick and drop us. Like any other primary section, I'm assuming the school timings were 1 to 6. Obviously, because we had school bus and we used to stay far, we used to be the last ones to board the bus and the last ones to get off. So my mom used to give me 2 tiffins, and one for the main recess and one small tiffin for the school bus. Our school didn't have any canteen. I generally didn't know that schools have canteen until I got to know that other schools have canteen. मुझे ऐसा लगता था सिर्फ colleges में canteen होती है. But anyone from Gokulam, if you're watching this video, let me know in the comment section below कितना बुरा लगता था जब दूसरे बच्चे बोलते थे हमने कैंटीन से खाया, कैंटीन से वो खाया. हमारे पास तो कैंटीन ही नहीं थी भाई. हम हमारे एसी कंप्यूटर लैब से ही बहुत खुश थे. बहुत लो मेंटेनेंस बच्चे हैं हम. आई यूज्ड टू नॉट डू मस्ती, ऑनेस्टली आई विल नॉट लाई टू यू गाइज. आई वाज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन बैक देन. मैं अभी भी नहीं हूँ, बट बैक देन मैं और भी बोरिंग थी. तो मेरे स्कूल से कभी घर पे कॉल नहीं गया है. मुझे आज तक कभी रिमार्क भी नहीं मिला है. And I was good at academics. So वैसे I was a very sorted child. I had only 2 motives. I used to just dance and study. Those were the only 2 motives I had back then. इतना sorted होने के बाद भी 1-2 stories है जो मैंने manage कर ली. Otherwise I'm glad जो मैंने manage कर ली, वरना मैं क्या ही अपने kids को बोलती या आप लोग को बोलती. तो थोड़ी interesting stories luckily मिल गई. The mango story. So if you are my cousin or if you are someone close to me, you might know about this. ये मेरी मॉम अब तक मुझे सुनाती है. आई डोंट नो, आई वॉज इन 3rd और 4th, एंड सब लोग उस दिन टिफिन में मैंगोज लाए थे. एंड फॉर सम रीजन तभी मैंगोज घर पे नहीं आए थे, लाइक उस सीजन के. एंड सबके टिफिन में मैंगोज थे, लिटरली मेरे आसपास जो भी थे. और मेरे घर पे भी मैंगोज नहीं है. मैंने घर पे आके, मुझे पता था कि मेरा रोना मेरी मॉम के सामने नहीं चलता है. एंड जब तक दादू दादी थे, मतलब मैं मॉम डैड के पास में कमी में सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाती थी. मैं हाई कोर्ट के पास नहीं जाती थी. आई होप दैट इज राइट, बट या. सो मैंने दादू के सामने ऐसे फुल रोना वोना चालू कर दिया कि एंड 15-20 मिनट रोई पहले, ताकि वो उनको लगे कि मैटर बहुत सीरियस. 15-20 मिनट बाद दादू ने पूछा कि तू रोना बंद करो, बता एग्जैक्टली हुआ क्या. एंड आई वाज लाइक दादू हम इतने, एंड दीज वर माय एग्जैक्ट वर्ड्स. मेरी मॉम आज तक मुझे ये स्टोरी सुनाती है. दादू हम इतने गरीब हो गए कि हम मैंगोज भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि मेरे स्कूल में तो सब मैंगोज लेके आ रहे, बट हमारे घर पे अब तक मैंगोज नहीं आए. दैट डे एंड टुडे आई न्यू माई वे. मैंने ये चीज़ बोला है, एंड द मोमेंट माई डैड हैज एंटर्ड फ्रॉम ऑफिस, मेरे दादू ने उनको बोला है कल सुबह तक मैंगोज आ जाने चाहिए घर पे. एंड जेन्युइनली नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई हैड मैंगोज इन माई टिफिन. सो एंड माई मॉम वॉज जस्ट लिटरली लाइक, क्योंकि मम्मी के सामने मेरे क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं काम करते. वो दिन और आज का दिन, तभी दादू से रो रो के अपनी बात मनवा ली, अब पापा से अपनी रो रो के बात मनवा लेती हूँ. So yes, I was in 2nd standard when my mom put me into classical, because my dadu really wanted me to learn classical. So my mom put me into Bharatanatyam, and my mom also put me into skating. Like every other Indian mom, उनने मेरे को हर क्लास में ऑलमोस्ट एडमिट करने की कोशिश की है. वो मेरे को कराटे भी लेके गए थे, बट दे वर लाइक योर किड इज नॉट एलिजिबल बिकॉज शी इज अंडर वेट एंड शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ to join the class or be a part of the class. So karate तो हुआ नहीं. Swimming she never wanted me to go because she used to be like skin खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे. तो swimming, and she is also scared of water, so she never really liked swimming as such. बट स्केटिंग एंड डांस की भी मेरी 2 क्लासेज, क्लासिकल की और बॉलीवुड की अलग 2 क्लासेस होती थी. उनने मेरे को बहुत बार आर्ट क्लासेस डालने की कोशिश की, ये सोच के कि उनकी बेटी को ड्राइंग आ जाएगी, बट शी इज ऑलवेज फेल्ड. मानसी एंड आर्ट इज लिटरली लाइक
बॉम्बे एंड ठंड, इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज मुझसे ड्राइंग नहीं होती, मैं एक सर्कल भी खुद से नहीं बना सकती हूँ, ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है. सो एक ही लेक्चर या एक ही पीरियड बोलते थे हम छोटे थे तब, एक ही पीरियड जो मैं हमेशा स्किप करती थी. लाइक 10 पीरियड्स में से मैंने 8 पीरियड स्किप किया होगा. और टीचर कभी मुझे रिमार्क नहीं देती थी बिकॉज मेरे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होते थे. मैं पापा से क्या, मम्मी से कंप्लीट करवा लेती थी या मेरे कजन्स से कंप्लीट करवा लेती थी. तो मेरे असाइनमेंट्स सारे कंप्लीट होते थे और मेरे पास बहुत जेन्युइन रीज़न होता था अटेंड नहीं करने का. अकॉर्डिंग टू द टीचर्स मैं पेट दुख रहा है, ये दुख रहा है करके हमेशा 8 पीरियड के पहले मैं घर आ जाती थी. मेरे को 8 पीरियड में बैठना ही नहीं पसंद था, बिल्कुल बैठना नहीं पसंद था. मैं 8 पीरियड बिल्कुल अटेंड नहीं कर सकती थी. सो येस, दिस वॉज माई प्राइमरी सेक्शन. सेकेंडरी सेक्शन के टाइमिंग्स होते थे सुबह 7 o'clock से लेके 12:45 1 o'clock तक. And you should hate getting up in the morning. Very different Mansi. I will try to insert pictures of my school life if I have any. But I used to look very, very different. I used to be that girl who was never any guy's first choice, you know, romantically, because ऐसे मेरे बहुत friends थे. बट यू नो स्कूल में सेकेंडरी में तुम आते हो तो यू नो जनरली सेकेंडरी सेक्शन से चालू हो जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला. बट मुझे तो कभी था नहीं इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिस्टम में, बिकॉज मुझे पता था कि मम्मी मारेगी. तो मुझे बहुत डर लगता था. 2 ही बार मैं रोई हूँ फॉर अ गाय इन स्कूल लाइफ. स्कूल में तभी वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. एंड 5th स्टैंडर्ड में मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक मैं मेरी उस समय की बेस्ट फ्रेंड and that guy used to sit behind and he actually had a crush on the girl who used to sit with me, but I had a crush on him. And ट्रस्ट इश्यूज वहाँ से स्टार्ट हुए. समझ रहे हो तुम, इतने गट्स थे मेरे में उस समय. और मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को स्कूल में बिकॉज आई यूज्ड टू फील दैट आई डोंट लुक गुड, बहुत फियर ऑफ रिजेक्शन भी था. सो even if I liked anyone, I never went and confessed or even typed for that matter. And मैं ये बहुत 2000s मतलब 2007-8 की बात कर रही हूँ, तो तभी फेसबुक बहुत होता, जैसे अभी इंस्टाग्राम है, तभी फेसबुक बहुत पॉपुलर था. तो कुछ भी बात करनी, मतलब फेसबुक पे स्टेटस डालना, फेसबुक पे चैट करना वॉज वेरी वेरी लाइक a cool thing. It used to be like a cool thing. I remember asking. फिर मुझे बाद में पता चला eventually, and ये पूरे टाइम मैं ऐसे, मुझे वो लड़का बहुत पसंद था. ठीक है, बहुत. आई थिंक मैंने मेरे आसपास मेरे जो बिल्डिंग के फ्रेंड्स थे, मेरे मतलब बहुत लोगों को बता भी दिया था कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है. ठीक है, बट अभी कैसे किसी को ऐसा डेट वेट करना, डेट का कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं पता, मुझे बस पसंद था. ठीक है, नॉर्मल है. बिफोर माई रिलेटिव्स गो एंड कॉल माई मॉम, अच्छा मानसी को तो ये लड़का. 5th स्टैंडर्ड की बात करूँ मैं, 5th स्टैंडर्ड. ठीक है, सो क्या हुआ एक दिन, मतलब आई टेक्सटेड हिम ऑन Facebook that do you like this girl who's sitting next to me. I'll obviously not take names. I wish I could take names, but do you like this girl and all? And he was very shy guy. Okay, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था maybe because he was very shy or whatever it is. So and I posted a status. I wish I could put picture of that, but unfortunately वो post में से delete करवा दिया मेरे भाई ने. मैंने literally फेसबुक पे ऐसे पोस्ट किया था, तभी इमोजीज होते थे एंड यू कुड लाइक रिएक्ट ऑफ हाउ यूर फीलिंग एवरी डे. मैंने फेसबुक पे ऐसे पोस्ट किया था, आई एम एंग्री एट दिस पर्सन फॉर नॉट रिप्लाइंग टू माई मैसेजेस. ये मैंने पोस्ट किया था एज माई स्टेटस. कैन यू इमेजिन, मैंने उस इंसान को टैग भी किया था. कट्स जो थे मेरे उस समय, एंड मेरे भाई ने जैसे ही वो पोस्ट देखा, और लकीली जिसको मैंने टैग किया था उसने वो पोस्ट तब तक नहीं देखा था. मेरे भाई ने मेरे से वो पोस्ट लिटरली डिलीट करवाया, दैट यू नॉट सपोज टू डू सच पोस्ट, डू यू रियलाइज? एंड आई वाज लाइक, नो, आई एम मैड एट दिस गाय, ही इज नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. आई नो ही डजंट लाइक मी, बट ही इज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग दैट ही लाइक्स माई फ्रेंड, विच इज रॉन्ग. सो तब मेरे भाई ने मेरे को थोड़ी अक्ल दी, दैट लीव इट, you, this is not your space, you're too young for all this. And he was in 7th standard back then and I was in 5th. So he was like, please don't talk to this guy or whatever it is, don't hurt yourself more and all of that. So वो चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो गया. बट वहाँ से जो ट्रस्ट इशू स्टार्ट हुआ है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि भाई मैं किसी लड़के को पसंद करूँ और वो लड़का मेरी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करे, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम. सो कॉकटेल तो बहुत लेट आई है मेरे दिमाग में, तब से कॉकटेल चालू हो गया था एंड वो चैप्टर क्लोज हो गया. वो लड़के को आज तक नहीं पता है दैट आई हैड अ क्रश ऑन हिम
and if he is ever watching this video, I did have back then, अब obviously नहीं है, and I'm glad अब तो कुछ नहीं है, but वो मेरा first heartbreak था 5th standard में, and 6th 7th was pretty normal. 8th standard was horrible. मेरी आंखें खोल दी because I had science and I was a student who was very good at biology and physics. बट केमिस्ट्री में मेरे इतने गंदे मार्क्स आते थे, इतने गंदे मार्क्स आते थे, लाइक 30-40 मार्क्स आते थे मेरे आउट ऑफ 80. मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था. फॉर दैट मैटर मेरी मॉम ने सिर्फ एक ही बार मेरे को बहुत डांटा है. दैट्स व्हेन माय ट्यूशन टीचर कॉल्ड माय मॉम बिकॉज आई वाज नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री. आई यूज्ड टू हेट स्टडिंग केमिस्ट्री लाइक एनीथिंग. I wish I could take that teacher's name. I would never abuse any teacher, but that teacher, you should know how to not insult students in front of the entire class. उनने क्या किया था 8th स्टैंडर्ड में, सबके नाम लेके सबको कितने मार्क्स आए थे वो क्लास में अनाउंस कर दिया था. एंड मुझे पता था कि क्योंकि वो एक दिन पहले बोल देते थे कि आज हम मार्क्स अनाउंस करने वाले, सो रिपोर्ट कार्ड के पहले ही पता चल जाता था हमें कुछ सब्जेक्ट्स में, नॉट ऑल सब्जेक्ट्स. तो मैंने उस दिन बंक कर लिया कि मैंने मम्मी को बोला मम्मी तब, एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक माई अटेंडेंस वॉज ऑलवेज गुड. तो मैं अगर मम्मी को बोलती थी मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना, तो मम्मी यूज्ड टू एक्चुअली लाइक कंसिडर बिकॉज शी न्यू आई यूज्ड टू हेट स्किपिंग स्कूल. तो मैं नहीं गई उस दिन एंड मुझे पता चला मेरे आए कुछ 40 मार्क्स, 30 या 40 मार्क्स है. So I practically just failed once in school was in chemistry in 8th standard. बाकी हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स आए, but chemistry I used to hate obviously because I was absent. बैक देन जो मेरे फ्रेंड्स थे उनने मुझे फेसबुक में मैसेज करके बता दिया कि तेरे तो इतने मार्क्स आए, मतलब द एंटायर क्लास न्यू दैट आई फेल्ड. इट वॉज मोर एम्बैरेसिंग बिकॉज आई वॉज द वाइस कैप्टन इन 8th स्टैंडर्ड ऑफ माई हाउस. लाइक आवर स्कूल हैड 4 houses, green house, yellow house, blue house and red house, and I was vice captain of green house. So it was like vice captain होके मैं फेल हो गई एक सब्जेक्ट में. And I think any teacher should not do this, should not announce marks in front of the entire section because it really demotivates the one who scored less. It really motivates the one who scored more, and it really hit me like a truck. And I was very honest with my mom back then and abhi bhi. So I told my mom that I can't go to school and I'm not ready to face anyone. I didn't go to school basically, and I really requested her to like give me a week or two to like recover from this because I was so scared कि मैं स्कूल जाके कैसे सबको फेस करूँ. बिकॉज आई वॉज समवन बैक देन कि कोई मेरे मुंह पे हंसता था या मुझे कोई रूड बोलता था, आई यूज्ड टू नॉट बी लाइक थिंक ऑफ व्हाट टू से देम, लाइक आई कुड नॉट लाइक हैव एनी कम बैक. सो I was very scared and I told my mom like please just give me some time to get out of this, and she genuinely like really gave me that space. After 2 weeks she was like now that you have taken 2 weeks, I didn't go to school for 2 weeks. I was so upset and I have literally just locked myself in room and cried like the entire day because I was so scared to like go back to school, go back to the same classroom and talk to those people. So I used to be like what if they take away from my batch that I'm the vice captain, and like school में बात ऐसे फैलती थी. Only reason why I went to back to school was my mom, because my mom was like कुछ नहीं होता, you have to move on, you have to fight your battle in the next semester, score more. So that is how I actually my mom pushed me, and that was my 8th standard where I was actually the vice captain also, and I failed in chemistry, and that is the time I realized कि मैं साइंस नहीं ले सकती हूँ, मैं कॉमर्स लेने वाली हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में ख़राब मार्क्स आए. एंड आई वॉज इन ICSE बोर्ड, सो वी हैड द ऑप्शन टू चूज बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप टेकिंग कॉमर्स फॉर 9th 10th. and in my 9th 10th I actually 9th 10th is the only time when actually had like a group. That's the reason मेरे 9th के मार्क्स थोड़े अफेक्ट भी हुए थे बिकॉज आई सक एट बैलेंसिंग. या तो मैं मस्ती कर सकती हूँ या मैं बैलेंस कर सकती हूँ, एंड आई एम रियली वेरी एनवियस ऑफ पीपल हु कैन बैलेंस, लाइक हु कैन डू मस्ती ऑल्सो एंड गेट अमेजिंग मार्क्स ऑल्सो. 9th स्टैंडर्ड में प्रॉपर ग्रुप फॉर्म हो गया था बिकॉज क्या होता है ना, एवरी सेक्शन योर क्लास यूज टू चेंज, बट जो आपकी 9th स्टैंडर्ड की क्लास है वो ही सेम 10th की होती थी. इट वॉज ओनली फॉर 9th 10th. आई वॉज द ओनली स्टूडेंट इन माई बैच who performed like 9th 10th में तुम फेयरवेल देते हो, 9th standard gives farewell to 10th standard, who performed a solo
for the 10th standard farewell. And why that whole situation ended up, so because I was having that group, I was practicing with that group, and that group was having too many arguments about songs, and I am a little dominating personality. तो मुझे नहीं चलता कि मतलब डांस एक तो मेरा फोटे, उसमें तुम मुझे डोमिनेट करो, दैट्स नॉट हैपनिंग. सो मैंने डिसीजन तभी ले लिया था कि मैं सोलो करूँगी. एंड मुझे पता नहीं कि बैक देन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि मैंने पूरे डिवीजन के सामने मैंने सोलो की स्पेशल परमिशन लिया. मैंने टीचर्स को बोला आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू डू अ सोलो, एंड आई हैव so much regret that I do not have the video of my performance, but I was the only student who ever, I don't know अब गोकुल धाम में किसी ने किया कि नहीं, who ever performed solo, because solo was actually not allowed. And I had to give audition. Entire 9th standard is sitting in the auditorium, and I performed on the stage alone, and I told my teachers that if I clear this audition, I am performing solo for my seniors. And I did that, and I actually did that even after getting bullied, even after everyone knowing about my chemistry thing. And I was bullied very badly in school because of the way I looked, because apparently I was not very good looking back then. I did not have the most aesthetically pleasing body face, so I was bullied a lot. And I remember that very evidently, because a girl can never forget any insult or any compliment, mark my words, be it coming from a man, be it coming from a woman. I remember seniors messaging me on Facebook at that time that dude, we loved your performance. पता नहीं अब भी कोई मुझे ये करने बोले मैं नहीं पुल कर पाऊंगी, बट बैक देन मैंने ये पुल कर लिया. So yeah, that was the most iconic thing I did in my school journey overall. Teachers की first choice for sure. Every teacher loved me like anything, and teachers used to always be like Mansi, and students used to never like me, maybe because I was teacher's first choice, and because of my height I used to sit behind. Otherwise I was always I was the last bencher, but otherwise I was very good at studies. 10th standard again was the time when I cried again for a guy who was not from my school, from another school. मुझे वो लड़का बहुत पसंद था, मैंने बहुत रोया उसके लिए. जस्ट बिफोर बोर्ड्स, तो मेरे प्रीलिम्स में भी खराब मार्क्स आए थे बिकॉज ऑफ हिम. बाय खराब आई मीन मेरे 70% आए थे प्रीलिम्स में, बिकॉज आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट गाय. एंड देन आई वॉज लाइक नहीं, अगर फ्यूचर में अच्छी कॉलेज में जाना है तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे. तब मैंने उस लड़के को ब्लॉक किया, रोना धोना बंद किया, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर बोर्ड्स. And so yeah, this was my overall school journey. So glad that I grew up in an era where there was no social media. I used to literally go play games, though I used to cry on every sports day. I was horrible at sports. प्रबोधन में होता था हमारा sports day, and I used to literally cry because मुझसे sports नहीं खेला जाता, ना मुझसे भागा जाता है. बट अभी मैं बहुत अच्छे से भाग सकती हूँ, बट बैक देन नहीं भागा जाता था. आई नो सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड. It's just that don't forget that you have a life apart from social media also, and just focus on studies yaar. Matlab this is your time to shine, and focus on your hobbies. And I want to get back to school, like best days. स्कूल यूनिफॉर्म पहन के मैं तो एकदम ऐसे 2 चोटी, मेरी मॉम तो इतना तेल डालती थी मेरे चोटी में, मतलब आधा तो मेरी मॉम रीजन थी मेरे को बुली होने में. मेरे को इतना ऐसा चंपू बना के स्कूल भेजती थी कि कोई लड़के की मैं भाई फर्स्ट चॉइस तो कभी हो ही नहीं सकती. स्कूल में ये सब डेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत पड़ो. मुझे भी सिर्फ क्रश होते थे, आज इस पाया कल उस पाया, बस उसको उधर तक ही रहने दो. पढ़ाई पे फोकस करो, शाइन, स्टडी प्रॉपरली, मेक गुड मेमोरीज. एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एनीवन्स मॉम, but yes, this brings me towards the end of my video. I hope you guys enjoyed my school journey, and if you did, you already know the drill. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye, take care.